مدرسے کے حوالے سے؟ میں اپنی طرف سے جی آپ سب احباب کو دل کی اتھاء کرنے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو جن احباب نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی ہے وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ بہت ہی خیر والا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان ہوا جو دوسروں کے لیے نفع رسانی کا باعث بنے. تو اس سے بہتر اور اچھا کام کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہم سب نے اپنی طرف سے اپنے دوست احباب کی طرف سے پوری یقین دینی کرواتا ہوں کہ ہم اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے اور اس میں بہتر طریقے سے پایا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. شاید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور یہ اسپیشلی یہ خواتین کے لیے آغاز کیا گیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس باغیانے میں بڑا کام ہے. اور یہ قرب و جوار کی جو خواتین ہیں یہ ویسے بھی گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑا ایک موقع ہے. دینی مسائل سیکھنے کے لیے ان کا بڑا موقع ہے. جس گھر میں ماں دینی ہوگی تو وہاں پہ اولاد بھی آگے دین کے مطابق چلے گی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بچیاں یا بڑی خواتین چھوٹے بڑے اگر یہ ابتدائی چھوٹے چھوٹے مسائل ہی اگر سیکھ لیں گھروں میں، تو یہ کم سے کم یہ ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، دوسروں کے متعلق باتیں سوچنا، یہ ان باتوں سے وہ دور ہو جائیں گی. جب اسلامی ذہن رکھیں گی تو پھر اسلام کے مطابق یہ اپنے سارے لوگوں کو چلنے کی تلقین بھی کریں گی اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی بڑی کاوش ہے. تو بہت ان لوگوں کا شکریہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بھی افتتاح کیا ہے اور یہاں پہ ہماری ساری خواتین اس سے مستفید ہوں گی. وما علینا الا البلاغ. عاقب صاحب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس مدرسے کے؟ سب سے پہلے آپ سب کو مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ٹائم نکالا اور میں تازہ برلاز ویلفیئر کا بے حد شکر گزار ہوں. ممتاز صاحب سے گیلانی سے آپ سے میری چھوٹی سی بات ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اتنا بڑا پروگرام جو ہے مختصر ٹائم میں جو آپ نے کیا اس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اندھیرے میں ایک دیا جلتا تو بہت دور سے اس کی روشنی نظر آتی ہے. شاید اللہ کرے کہ ہمارے گاؤں میں نے دیکھا کہ اس علاقے میں ہمارے پاس اسلامی کوئی سسٹم نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ میں آگے بھی اس کی جو ہے نا بھرپور تعاون کروں گا. میں سب لوگ کریں گے میری طرف سے جو ہوگا. میرے بھائی ہیں ادھر سب جو ہے نا انشاءاللہ ہم آپ کی پوری جو ہے دیکھ بھال کریں گے اور آپ کا تعاون کریں گے. آپ بھی ہمارے لیے دعا دیں اور سب بچے اس سے یہ خواتین ہیں بچے ہیں سب اس سے جو ہے نا کچھ فائدہ حاصل کریں تاکہ ہماری آخرت بھی اصل یہ کہ نام کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو ہے نا ہمارے گاؤں کے لیے آگے اصلاح کے لیے یہ ہم نے قدم اٹھایا تھا. آپ سب لوگوں کا بے حد میں مشکور ہوں. خبردار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اس سے پہلے ایسی کوئی بات کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئی. ہم اس بات سے آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے ایک نیک نیتی سے اسلامی حوالے سے ایک سینٹر کا پروگرام بنایا اور اس میں چھوٹی بڑی سب خواتین حصہ لیں گی. اس کو دینی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں گی اور دینی حوالے سے ہمارا ایک معاملہ آگے بڑھے گا. اس سے انشاءاللہ ہم بالکل غلط باتوں سے غلط کاموں سے ہم لوگ ہماری بچیاں ہماری عورتیں دور ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. ممتاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب احترام یاسین صاحب، شاہد صاحب، ثاقب صاحب، مسعود صاحب، یونس صاحب، دیگر ساتھی اعزاز، میری بہنوں السلام علیکم. میں دادا برلاز ویلفیئر کا سیکرٹری مالیات اور یہاں کا ایک لوکل کاؤنسلر ہونے کے ناطے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی اچھائی گرمیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں آپ نے آئے اور چار چاند لگے. ہمیشہ کی طرح دادا برلاز ویلفیئر یو سینٹر بھی اسلامی سینٹر جو ہم لوگوں نے کھولا اور کھل گیا، اللہ کا شکر ہے. ہمارے لیے بھی جو ہے اعزاز کی بات ہے کہ اس طرح کے ہم نے 2-3 سینٹر 4 اور بھی پہلے کھولے ہوئے ہیں. الحمدللہ وہ بھی اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اور میری آپ پہ جو پڑوس کے سارے لوگ خاص کر کے یاسین صاحب، شاہد صاحب، نمبردار صاحب، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ
हमारी मदद भी करें और इस सेंटर की देखभाल भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम थोड़े दूर से हैं और मसरूफ भी हैं, लेकिन आएंगे हम भी अपने आपके साथ खाने पे खाना मिलेंगे। लेकिन आप लोगों से खुसूसी मेरी गुजारिश है कि आप हमारे साथ ये सेंटर की देखभाल, ये सेंटर जिस तरह भी है इसकी मालूमात जो भी चीज़ है आप लेंगे और आपके पास पहुँचेगी, और आपको इसको आपने चलाना है, ये आपके जहन में होना चाहिए। ना यासीन साहब और शाहिद साहब, आजकल के नबुलदार साहब तो मेरी तरह बड़े हैं, बुढ़ापे में है, लेकिन इन आप दोनों का गुजारिश है कि आप हमेशा की तरह दादा बल्ला वेलफेयर के मेम्बर भी बन जाएं मेरे साथ। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ, और मज़ीद जो भी अगर किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी है तो हमसे मशवरा करके आगे हम लोग मज़ीद चलने के हिसाब में है कि मज़ीद और आगे चलेंगे। हमारे बागीने के अंदर आप देखो बहुत जगह ऐसी है, यहाँ ये सेंटरों की शदीद ज़रूरत है। यहाँ पे छोटे छोटे सिलाई सेंटर हों और ये सेंटर हो, ये काम हम लोग आपके सामने कर रहे हैं। बस ये है कि आप लोगों का साथ भी हमारे साथ हो जाएगा और मजबूती से हम लोग आगे इंशाल्लाह बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं एक मतलब फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, आप लोग की मदद दी थी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस सेंटर के बारे में? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली शाहिद भाई आपका ना, क्योंकि आप शायद प्रोग्रामों में कम जाते हैं, और यासीन यासीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तो फिर भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन शाहिद भाई पहली दफ़ा है और खुशी हुई है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। यूनिस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बुजुर्ग हैं और आपको देख के हमें बहुत खुशी हुई है, और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपका साया इस इलाके पे कायम रहे और अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता करे। आमीन। आप सब लोग यहाँ पे हैं, सब ने बातें की हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये देखिए हमने सेंटर तो स्टार्ट कर लिया है। कहते हैं कि दुनियावी कामों में तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, शायद दीन के कामों में हम लोग बहुत पीछे हैं ना। अभी शायद हम लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा कि हम लोगों ने ये जो सेंटर स्टार्ट किया तो हम सोच रहे क्या पता चलेगा नहीं चलेगा, किस तरह से होगा, लेकिन अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला के साथ हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम इस सेंटर को, हम नहीं बल्कि हम सब मिलके इस सेंटर को इतना अच्छा करेंगे जिस तरीके से शबीर साहब ने कहा ना कि आज का नए दौर का तकाजा है। आपको पता है कि पहले कुरान पाक भी उस तरीके से जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी तक हम लोग वो तजवीज़ और तफसीर नहीं पढ़ सकते हैं जिस तरीके से आजकल पढ़ाई जा रही है ना, और बिल्कुल जदीद तरीक़ों से। पहले कुरान पाक हम लोग देख के पढ़ते थे, अब डिजिटल सब सिस्टम हो चुका है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे। साकिब को मैं अभी कह रही थी कि मैंने कहा आपका पूरा घराना करोड़पति है ना। करोड़पति मीन ये है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, और अगर आपने इसमें कोई कदम रखा है तो आपने अच्छे तरीके से इसकी उसी तरीके से सपोर्ट करनी है कि जिस तरीके से आप इस सेंटर की ज़रूरत है। बिल्कुल हमने रवायती तरीके से इस सेंटर को नहीं चलाना है, इसलिए आप सब लोगों का हमारा साथ रहेगा। हम सब एक इंशाल्लाह मिलकर इसको चलाएंगे, और इसके लिए हम यहीं पे एक कमेटी बनाएंगे। मुमताज़ साहब से पहले भी मैंने कहा था कि जो कमेटी जब भी हमारा कोई मसला हुआ तो हम इस कमेटी को हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे, और साथ साथ हम देखेंगे कि इस दर्स के अलावा ये देखिए पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे ना, इस बिल्डिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर ख़वातीन के हवाले से हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि नुज़ुत बजी के घर में अभी भी हमारा सेंटर चल रहा है। 2 साल हो गए नुज़ुत बजी ने वो डब समझो कि हमें डोनेट की हुई है। उसमें पहले हमारा सिलाई सेंटर चला था, बेसिक था, फिर एडवांस था। अभी हमारी वहाँ पे केचप जैम जेलीस की जो ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद ख़वातीन उस पर काम करेंगे। और खुद सोचें कि हमारे घर में जैम भी यूज़ होता है, केचप भी यूज़ होता है, अचार भी यूज़ होता है, लेकिन वो कौन सा केमिकल, जिसकी वजह से हमारे और हमारे बच्चों के मैदे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वो हमने सेंटर स्टार्ट किया, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम उसका दोबारा काम स्टार्ट करेंगे, और ये पूरे इलाके में इंशाल्लाह हमारी केचप जैम जेली जो भी हम बना सके वो इस्तेमाल होगी, और केमिकल के बगैर और बिल्कुल फ्रेश हालत में। इसी तरह से ये होगा कि जब वो मार्केटिंग होगी तो ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी होंगी, और ख़वातीन को अगर थोड़ी बहुत आमदन होगी तो वो आगे बढ़ेंगी। आजकल इतनी महंगाई है और इतने मिसाइल आ चुके हैं कि ख़वातीन का अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे घर में इस तरह की ज़रूरत ना हो, आपके घर में उस तरह की ज़रूरत नहीं। हमने उस खातून को देखना कि जिसके घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, उसके पास इतना शायद रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने घर का पूरा निज़ाम चला सके। हमने उन ख़वातीन के लिए आवाज़ बननी है। शायद मुझे ना ज़रूरत हो, आपके घर में किसी खातून को ज़रूरत ना हो, आपके किसी पड़ोस में ना ज़रूरत हो, शायद मोहल्ले में 8-10 घर ऐसे हैं कि जिसके लिए हम लोगों ने आवाज़ बननी है। और दाता बल्ला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हर उस घर की आवाज़ है जिसके लिए हम जिसको कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, या जिसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम सब ने उसके लिए आवाज़ बननी है। हम सब वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, और किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग? अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम करते हैं तो
हर तरह की आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, हर तरह के एंटी लोग आपके सामने आएंगे। लेकिन जब हमने अल्लाह के लिए कदम बाहर रख लिया है ना, अल्लाह ताला के लोगों की खुशनुदी के लिए कदम रख लिया, फिर हमने जितनी भी मुश्किलात आई, जितनी भी लोग बातें कह रहे हैं, हमने पीछे नहीं हटना। देखें कि हुकूकुल्लाह जो हैं वो अल्लाह ताला ने जो रखे हुए हैं 8 से 10% है। हुकूकुल इबाद 9 से 92% है। 9 से 92%। अगर किसी 100 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से 92 नंबर आप नहीं लेंगे, 8 या 10 नंबर लेंगे तो पास होंगे। नमाज, रोज़ा, कलमा, ज़कात, हज जो भी है वो 8 से 10% है। लेकिन हुकूकुल इबाद उसमें भी जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है उसमें भी हुकूकुल इबाद है। लेकिन अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद अपने बंदों के हुकूक 9 से 92% रखे हुए हैं, और 9 से 92% हम इग्नोर करके हम नमाज, सजदा, कुरान पाक को ज़रूरी है, लेकिन हम बिल्कुल भूल चुके हैं, और हमने इन्हीं 9 से 92% लोगों को साथ लेके चलना है। इसलिए आप यहाँ पे कमेटी बना के एक ऐड करके जाएंगे कि हम लोगों ने इस सेंटर को चलाना है, और इस जैसे कहीं और लोगों की सपोर्ट करनी है इस प्लेटफॉर्म से होके। ये चीज़ आपकी है, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह मिलके इसको चलाएंगे। तो अभी मुमताज़ साहब सबकी